chemotaxis and diapedesis of the leukocytes in inflammation. As the leukocytes are considered as an inflammatory cells, क्योंकि इन्होंने inflammation के process को execute करना है, so that's why there is a need of the movement or the migration of the leukocyte. कि leukocyte क्योंकि blood में present है, तो blood से उनकी movement towards the site of tissue जहाँ पे stimulus, जो harmful stimulus in a form of infection है, that process is very important. So chemotaxis और diapedesis are the events जो कि leukocytes को help करते हैं in the migration from the blood towards the site of infection. So the leukocyte provide response against the infection because these are considered as an inflammatory cells. जब भी infection होगा, तो every time the leukocytes they will provide a first line of defense. In that particular case, that means that the innate immunity के केस में जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें जो सेलुलर कंपोनेंट है उसमें ल्यूकोसाइट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. So the chemotaxis is very important process. That means that the chemotaxis means the movement of the leukocyte from the blood towards the site of infection. Now this movement is the called as chemotaxis. Chemotaxis का मतलब है chemo means it representing the chemical and taxis mean movement, means the movement of the leukocyte under certain chemicals, means chemicals के influence में अगर leukocyte move करते हैं towards the site of infection, that process is called as chemotaxis. Now how these chemotactic agents, जो chemotactic compounds हैं या chemotactic agents हैं या chemicals हैं जो leukocytes को guide करते हैं कि now they have to move from blood stream towards the site of infection. So those are certain signals like SOS signal. SOS stands for save our soul. Means now the tissue is giving the message that now you have just to provide protection. So SOS signal can be various form. For example, from the bacteria जो infectious agent है उससे भी SOS signal आ रहे हैं like N-formyl methionine containing peptides जो कि वो release कर रहा है bacteria. So those peptides they are providing the signal to the leukocyte that now you have just to save the soul, that you have just moved towards the site from the bloodstream. So that is very important signal. In addition, inside the host, there are also certain factors are being there, like the clotting system peptides. Means जो हमारे blood में जो plasma में जो proteins हैं, those are called as clotting proteins or clotting peptides. कि जो ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं. तो डेट मीन्स दैट वो पेप्टाइड्स दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड कीमोटैक्टिक एजेंट. सो वो ल्यूकोसाइट्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं. अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द फ्रॉम द होस्ट साइट इज द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन. के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं, नॉर्मली दे आर इनएक्टिव बट वेन एवर दे आर जस्ट गोइंग टू एक्टिवेटेड दे produce various subunits, or you can say that different molecules or different active compounds. जो active compounds complement produce करते हैं they are also considered, जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, they are also और टिश्यू से वो मूव करते हैं. तो बेसिकली they are helping, they are guiding the leukocyte to move from bloodstream to the site of infection. Another important thing is cytokines. Cytokines, because these are considered as the mediators, cell mediators, means cell to cell interaction. के जो leukocyte जो के उसमें whenever certain leukocyte, for example the macrophages, they are also the leukocyte, mononuclear leukocytes. ये जब बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं तो they are going to activate it, and ultimately whenever they are just going to activate it, they are going to secrete the cytokines. तो वो साइटोकाइंस जो हैं वो पैराक्राइन मैनर में दे आर जस्ट गोइंग टू एक्ट ऑन द अदर ल्यूकोसाइट्स के दे हैव जस्ट टू मूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू site of the infection. That's why this chemotactic process is very important. Now, SOS signals, they also activate the endothelial cells of the blood vessels. क्योंकि blood जो है that is present inside the blood vessels. तो अब ये blood vessels जो हैं that are also made up of cells. और जो सेल्स ब्लड वेसल्स बनाते हैं दोज आर कॉल्ड एज एंडोथेलियल सेल्स. अब उन एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिवेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एसओएस सिग्नल उन ब्लड वेसल्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे
इन अ फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द एडहेजन मॉलिक्यूल्स। वो जो एडहेजन मॉलिक्यूल्स हैं एंडोथेलियल सरफेस पे, ताकि उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाए, और जब एडहेजन मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो ल्यूकोसाइट उसके साथ एडहेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन काइंड ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। तो अंडर द एक्शन ऑफ दीज एसओएस सिग्नल्स इस पे एक्सप्रेशन बढ़ेगा ऑफ द एडहेजन मॉलिक्यूल्स। अब जब ये एडहेजन मॉलिक्यूल्स इज जस्ट लाइक द एडहेसिव टेप, मींस के वो ल्यूकोसाइट के साथ एडहेयर कर जाए, ल्यूकोसाइट उसके साथ एडहेयर कर जाए, तो एसओएस सिग्नल दोनों सेल्स पे एक्ट करेगा, एक तो एंडोथेलियल सेल्स पे इन दिस केस, एज वेल एज दे आर आल्सो एक्टिंग ऑन दी ल्यूकोसाइट्स लाइक पॉलीमोर्फोन्यूक्लियोसाइड, और उसकी सरफेस पे भी जो एडहेजन मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाए। तो यू कैन सी दैट द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस इज बीइंग देयर, chemotactic molecules they are going to release, and the activation is going to be there, like the histamines or other molecules they are going to be there, और ये increase expression कर रहे हैं like selectins और ICAM, like intracellular activated adhesion molecules, उसका expression जब बढ़ जाएगा तो ultimately you can see that ये cells जो हैं ये first of all they will roll, and here you can see that they are just going to bound. So whenever they are just going to bound, the binding of the phagocyte to the adhesion molecule, ये एंडोथेलियल सेल्स पे जो एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ बाइंड करेंगे, और बाइंडिंग करने के बाद ये फेगोसिटिक सेल्स की एंडोथेलियल सरफेस के साथ बाइंडिंग हो जाएगी। जब ये बाइंडिंग होगी तो अल्टीमेटली ये फिर रोल करेंगे ऑन द एंडोथेलियल सेल, उसकी रोलिंग होगी, द रोलिंग ऑफ द फेगोसाइट। हियर यू कैन सी दैट इन दिस फिगर द फर्स्ट दे आर गोइंग टू बाउंड एंड आफ्टरवर्ड दे आर गोइंग टू रोलिंग, उस रोलिंग प्रोसेस की वजह से। सो रिलीज ऑफ द वेसोडाइलेटर्स मींस के वेसोडाइलेटर्स जो हैं एज अ नेम सजेस्ट कि वो जो वेसोडाइलेटेशन करेगा, ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन होगी, और उससे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके दरमियान गैप्स जो हैं वो लूज हो जाएंगे, और उस लूजनिंग की वजह से उसके दरमियान गैप बन जाएगा, एक स्पेस बन जाएगी, ताकि ये ल्यूकोसाइट इट विल मूव टूवर्ड्स दैट गैप। दैट्स व्हाई दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज अ कीमोटैक्टिक प्रोसेस। ओके, आफ्टर लूजिंग द एंडोथेलियल सेल्स द स्क्वीजिंग ऑफ द फेगोसाइट, फेगोसाइट्स क्योंकि वो एक फ्लेक्सिबल डायनामिक सेल्स हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू स्क्वीज। सो जब वो स्क्वीज करेंगे और एज अ रिजल्ट देयर इज एन प्रोसेस दैट इज द डायबिटीज क्रॉसिंग द एंडोथेलियल बैरियर आफ्टर द स्क्वीजिंग एंड मूवमेंट एक्स्ट्रावास्कुलरली, लाइक दिस यू कैन सी दैट ये जब यहाँ पे इसकी बाइंडिंग हो रही है, और उस बाइंडिंग के बाद एडिशन के बाद देयर इज एन रोलिंग, एंड रोलिंग के बाद here you can see that the leukocyte it is going to squeeze, it is going to squeeze, जो कि एंडोथेलियल सेल्स में एक जंक्शन डेवलप हुआ है, और उस जंक्शन और गैप की वजह से इट इज गोइंग टू स्क्वीज अप, और आफ्टर द यू कैन सी दैट स्क्वीजिंग, जब इसकी स्क्वीजिंग स्टार्ट हुई है तो मोस्ट ऑफ द सेल इट इज गोइंग गो एक्स्ट्रा सेलुलरली, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलरली, दैट इज इंट्रासेलुलरली। तो इंट्रासेलुलरली ये इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर इसकी मूवमेंट होगी, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज डायबिटीसिस, और वो सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस की तरफ मूव कर जाएगा, और इस मूवमेंट को कहते हैं डायबिटीसिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। एंड एक्स्ट्रावास्कुलर साइट दैट मीन दैट साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहां पे इन्फेक्शन है जो कि एक्स्ट्रावास्कुलर है वेसल की बाहर की सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्फेक्टेड टिश्यू साइट अट्रैक्शन ऑफ द फेगोसाइट टूवर्ड्स, दैट मीन्स दैट वहाँ पे आफ्टर द diapedesis process जो phagocytes हैं they will move toward the tissue site, infected tissue site, and that process is called as chemotaxis. So the chemotaxis and the diapedesis, these are the two important events of the inflammation, क्योंकि ये inflammatory cells को help out करते हैं in movement from the blood stream towards the site of infection.